Disclaimer, big disclaimer out there. This video is not going to be all happy, glamorous, fun. So if you guys are looking for some kind of entertainment or to feel lighter, please stop watching this video. This video is heavy, intense. I'm going to talk about stuff that most of us refuse to talk about. We just brush it off under the carpet and pretend everything is okay, everything will be okay and normal again. मेरी विनती है आप सबसे, आप रुक जाइए, वीडियो मत देखिए, क्योंकि देखने के बाद आपको कुछ हंसी नहीं आएगी, कुछ खुशहाली स्प्रेड नहीं होगी. So stop right now. Cheating एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में most of us refuse to talk. We don't feel confident. We don't want to address certain heavy subjects that are lying deep inside our consciousness, and we just want to feel normal again. But ऐसा नहीं होता. Cheating इतनी rampant है, whether commercially, professionally, personally, that इसके बारे में बात करना, if anything, is important. Recently, for those of you who are quite frequent with my YouTube videos, मैंने एक purchase करा जिसके लिए मैं 2 साल से wait कर रही थी, and that was Dyson Airwrap 2. Yes, I finally purchased Dyson Airwrap 2. Very happy, good news for me. Super satisfying to unbox the stuff, make a video for YouTube, etc. etc. लेकिन जब उससे गहरी बात है, मैंने वो शेयर नहीं करी. The thing is, when I went to purchase my Dyson Airwrap, I was told that I will get the opportunity to spin the wheel post my purchase and I might get something to win. It can be any kind of electronic product. वो फ्रिज हो सकता है, टीवी हो सकता है, iPhone 17 Pro हो सकता है, some kind of steam press हो सकता है, कोई भी electronic product हो सकता है, because it's an electronic shop and I'm buying from them. I was like, yay! I mean, मुझे 1 shot के साथ 2 shots मिल रहे हैं, so why not? I would love to do it. I purchased my Dyson and I was asked to then spin the wheel. जब मैं इस wheel को spin करने वाली थी, मैंने पढ़ा कि उसमें एक जगह लिखा हुआ था 1 year warranty, and I was like, I wasn't told that I could get not a product but 1 year warranty. Ambassador was like, हाँ आपको मिल भी सकती है ये. Then I reverted back to him by saying that I wasn't told this would be a condition. I was just told I would get any product, any electronic product. ये बहुत छोटी सी बात है. The point is, मुझसे चीजें छुपाई गई, मुझे कॉन करने के लिए, मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, उनको अपना फायदा बनाने के लिए. I was hurt. I was deeply hurt. I was not accepting this kind of behavior at all. Nonetheless, because I was helpless, I had no option but to play the spin the wheel game. मैंने wheel spin किया और guess what? मुझे क्या प्रोडक्ट मिला? मुझे 1 year की वारंटी मिली और कोई प्रोडक्ट नहीं मिला. As I thought so before, ये मेरे साथ होना था और मुझे शर्म एंड कैसे कहते हैं ना, एंगर उस बात का आ रहा है कि when the sales ambassador was supposed to sell something to me, she was so polite, she was so kind. मैंने lip gloss लगा लिए, my lips were cracking so bad. Anyway, when I was supposed to buy, the sales assistant was so polite, kind, sweet, patient, all those good qualities you are looking for in a friend. लेकिन जब मैंने परचेज कर लिया, उसके बाद उसके रंग ऐसे चेंज हुए हैं जैसे केक कैमेलियन होती है. I was so upset. As a consumer, I want to make an informed decision on whatever purchase I am making. But this lady, this very sweet, kind lady, उसने मुझे अलाउ नहीं करा अपना एक informed decision बनाना. बहुत छोटी बात है, माइनर सी बात है, इसको मैं ब्रश ऑफ कर सकती हूँ और मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एन ऑप्शन. आई एम नॉट लेफ्ट विद एन ऑप्शन. लाइफ में लोगों के साथ तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, वेदर इट इन्वॉल्व्स फाइनेंसेस और इट्स अ मेजर रिलेशनशिप और इट्स समथिंग टू डू विद अ डिसीजन दे मेड, which is nothing compared to my shopping experience. मैं ये इसलिए शेयर कर रही हूँ because I know चीटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बोलना सही नहीं समझते. हम समझते हैं कि हमारी गलती थी, यू हैव टू ब्लेम योर सेल्फ, तुमने ही क्यों ऐसा डिसीजन बनाया. इट्स अ वेरी आर्केक वे ऑफ थिंकिंग अबाउट लाइफ. आई थिंक जब चीटिंग होती है and you become a victim of cheating. I won't call myself a victim, I'll call myself, I don't know,
But I won't call myself a victim because I'm not a victim in this situation. No one ever is a victim. नहीं, मैं victim नहीं हूँ. मैं एक consumer हूँ और मैं एक individual हूँ जिसके साथ ये cheating, ये con, ये manipulation हुई है. और मैंने इससे ये सीखा है कि this is a blessing in disguise for me. It's a wake up call for me कि जो बाहर दिखता है वो होता नहीं है. अगर मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ इस वीडियो में, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी नेचर भी बहुत अच्छी होगी, इवन दो माई नेचर इज गुड. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर कोई इंसान इतना स्वीट बाहर से देखने में नहीं लग रहा, she can be sweet from inside and she won't end up conning you or manipulating you or using you. जब भी ये चीटिंग होती है हमें डील करना तो आता नहीं है, हमें बस ये पता होता है चलो यार छोड़ो, हो गया, डन एंड डस्टेड. नो, ऐसे नहीं डील करते इसके साथ. कैसे डील करें फिर? क्या तरीका है? व्हाट्स द बेस्ट वे जिसको हम चीटिंग से डरे भी ना एंड वी टेक इट हेड ऑन, बेसिकली डील विद इट. मैंने इस इंस्टेंसेस में और मैं लाइफ के सिमिलर इंस्टेंसेस में जब फ्रेंडशिप्स ब्रेकअप हो जाती हैं, फैमिलियल इश्यूज हो जाती हैं, मैंने ये सीखा है कि आपको अपने आप को ब्लेम नहीं करना. आपको सीखना है कि आपने कहाँ आपकी शॉर्टकमिंग्स थी, कहाँ आप वर्क ऑन कर सकते हो अपने ऊपर. हाउ यू कैन बी अ माइंडफुल पर्सन एज एन इंडिविजुअल and not let people enter your safe bubble. ये सबसे बड़ी बात है. फिर आता है seize all communication with that individual who conned you. I've learned my lesson. मुझे पता है कि अब मैं उस शॉपिंग सेंटर में दोबारा नहीं जाने वाली. वेदर मुझे अपना आईफोन लेना हो या मुझे कोई और इलेक्ट्रॉनिक लेना हो, I am not going back to that same brand no matter what. You guys have to stop communication with that individual who was caught cheating you. अपने socials पे उनको हटा दो, नंबर हटा दो. उसके बाद एक मेजर चीज जो हम सभी करते हैं, we bury ourselves in something else. For example, मेरे साथ ही cheating हुई, मैंने डायसन लिया, मुझे कुछ और बोला गया था लेकिन मेरे साथ कुछ और हुआ. आई एम नॉट दैट पर्सन हु विल कीप क्वाइट अबाउट इट. आई हैव ऑलरेडी लेफ्ट अ कमेंट ऑन गूगल रिव्यूज अबाउट द इंस्टेंस सो दैट अदर पीपल आर अवेयर ऑफ इट एंड दे नो that this is what is happening with that brand and that's how they try to manipulate and give half information to their consumers. Similarly, आप लोग भी अपने आप को छोड़ मत दो. Don't lose all hope and bury yourself in some other kind of work or start doing your hobbies. अगर आपको किसी बात का hurt है, if you feel you've been betrayed, you've been hurt, you've been cheated, you are not in the position to deal with life, you don't have to. लाइफ से डील मत करो और अपने आप को माइंडफुली अवेयर करो कि आपके साथ ये इंस्टेंस हुआ है और you need your own time. काफी टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम काम में चले जाते हैं, वी शव ourselves into work so that हमें उस बारे में सोचना ही ना पड़े कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है. This is no way to deal with life. अपना रिफ्लेक्ट करो, समझो क्या हुआ है, replay the instances. Yes, no matter how painful the experience was, दोबारा से जाओ, दोबारा से समझो कि क्या गलती थी, क्या हुआ उस दौरान जिस दौरान you were being conned, manipulated, cheated, and understand the psychology behind why people do such things. मेरे साथ ये इंस्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि उस सेल्स एम्बेसडर को अपना मंथली टारगेट और व्हाटएवर वीकली टारगेट बनाना था. I don't know what to say, like where to ask for help. लेकिन मैंने अपने आप को इस बात से हटाया नहीं, मैंने फील करा, मैंने समझा और आज के बाद जो मैं फ्यूचर में जाऊंगी परचेज करने के लिए और even in relationships I'll be aware. I won't be slipping off by small talk of people or by someone telling me, oh how pretty you are, lovely dress, lovely lip tint. I'm not getting into that. I know I am lovely or even if I'm not lovely, I know who I am. Don't manipulate me. मैं अपने मन में सोचूंगी. उसके बाद finally अपनी thoughts लिखो. आप कैसा फील कर रहे हो, क्या हुआ, post the experience, how you feeling, ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस कैसा लगा. चीटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बोलना वी जस्ट डोंट वांट टू टॉक एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वी डोंट वांट टू टॉक. इतने सारे लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है एंड जस्ट डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट. वो पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते, वो फ्रेंड्स से बोलने में दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ, वो साइकोलॉजी या काउंसलिंग की हेल्प लेते नहीं है, स्पेशली इन इंडिया. फॉरेन में तो तब भी लोग दे डोंट माइंड डिस्कसिंग एंड लेटिंग इट आउट विद प्रोफेशनल हेल्प,
लेकिन इंडिया में तो ये बहुत बड़ा बैरियर है एंड आई डोंट थिंक इट्स गुड। चीटिंग बहुत कॉमन है। मेरे सोशल मीडिया पे मैंने बहुत एक अच्छी फन रील बनाई थी ऑफ माई अनबॉक्सिंग डायसन and similar shots I've made of me purchasing say whatever something new। उसके पीछे जो पेन, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैंने शेयर नहीं करा एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई फेल्ट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं एक ये लॉन्ग वीडियो बनाऊं और आप सबको बताऊं कि इतनी समझदार लड़की के साथ, यस गाइस मैं समझती हूँ कि मैं समझदार हूँ, इतनी समझदार लड़की के साथ में छोटा या बड़ा जो भी आपकी डिक्शनरी में ये इंस्टेंस लगा आपको, ये हुआ और मैंने कैसे डील करा। मैंने अपने आप को ब्लेम नहीं करा, मैंने रिफ्लेक्ट करा, मैंने लिखा, यस मैंने एक्चुअली लिखा अपनी इस डायरी में कि क्या हुआ मेरे साथ। मैंने अपनी फैमिली के साथ में डिस्कस करा। मैं इस इंसिडेंट से भागी नहीं, मैंने हेड ऑन डील करा। मेरी आप सबसे भी यही एडवाइस है, अगर आपके साथ चीटिंग होती है रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, फैमिली में, बिजनेस में, छोटी डेली लाइफ में, तो उसके बारे में बोलना सीख ताकि दूसरे भी सीख सके। यू ऑल्सो गेट समथिंग आउट ऑफ इट बिकॉज वाइल यू टीच समवन एल्स यू ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वोंट हैव लर्नड अदरवाइज। दैट्स द पर्पस ऑफ मेकिंग दिस video on how to get cheated on and I think I should name it how to deal with it as well. Do let me know अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चीटिंग वाला एक्सपीरियंस हुआ, बीट्रेल हुआ है, किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा। मैंने इस कंपनी को इतना ट्रस्ट करा, आई थॉट कि ये बड़ी कंपनी होगी, नथिंग वुड गो रॉन्ग, बट मेरे साथ हुआ। सो टाइटल्स डोंट मैटर, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, छोटा इंसान या बड़ा इंसान, कोई भी आपका ट्रस्ट ब्रेक कर सकता है एंड दे ब्रेक इट हाउ आपको पता भी नहीं चलेगा। आई गॉट चीटेड